ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਮੈਂ ਅਮਨ ਮੋਹਨ ਮੋਹਜਾਲ। ਸੋ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਹੜੀ 19 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਬੈਠਕ ਹੋਣੀ ਸੀ ਉਹ ਬੈਠਕ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਰ ਰਾਤ ਇਹ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਬਰਾਂ ਇਹ ਸਨ ਕਿ ਕੱਲ ਭਾਵ 19 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਬੈਠਕ 12 ਵਜੇ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬੈਠਕ ਰੱਦ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ ਬੈਠਕ ਹੁਣ 19 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਬਜਾਏ 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਾਫੀ ਗਰਮਾਇਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਖਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨ ਸੰਸਦ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਕਾਇਦਾ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਜੋ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਸੀ। ਅਜੀ ਖਬਰ ਛਪੀ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਗੂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਖਬਰ ਝੂਠੀ ਸੀ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਤੇ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਸਵੇਰੇ ਉਹ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਕੱਕਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਕੱਕਾ ਦਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੀਡੀਓ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਮੈਂ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਇਆ ਹੈ ਉਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੈਂ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਨੂੰ ਜੇ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਸੀ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਮੈਨੂੰ ਆਰਡਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਸਮਝਾਉਣਾ, ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਰਡਰ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਨਾਉਣ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉੱਠਿਆ ਕਦੋਂ? ਮੈਂ ਜੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਮੈਂ ਹੁਣ भी नहीं जाऊंगा। अखबार में समाचार झूठा है, भ्रामक है, इस पर हम कार्रवाई कर रहे हैं। पत्रकार भास्कर के हैं, उनका नाम पता लगा लिया है और इस प्रकार के भ्रामक समाचार छापने के पीछे क्या षड्यंत्र है उसकी भी हम जांच कर रहे हैं। पत्रकार, आप अपनी जो स्टेटमेंट दे रहे हैं, कल को आपकी ऑडियो अगर रिलीज होती है तो इसी स्टेटमेंट पे कायम रहेंगे आप? कौन सा? आप कह रहे हैं कि जो पत्रकार ने झूठ बोला है, खबर दी है, बिल्कुल कायम तो रहेंगे। वो कह रहा है कि उसके पास रिकॉर्डिंग है। हाँ, बिल्कुल कायम रहेंगे। हमारे लोग संपर्क कर रहे हैं। उन्होंने आज कहा कि आप आइए, तो बोले मैं सोनीपत में हूँ। देखो जी, इन्ने किसान संगठन 400 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ NIA ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਕੁਝ ਹੀ ਹਰਕਤ ਆ। NIA ਬਾਰੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ 5-4 ਸਾਲ ਹੋਏ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਨੂੰ, ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਇਸ ਏਜੰਸੀ ਬਣੀ ਨੂੰ। ਇਹਦਾ ਵੱਡਾ ਦੌਦ ਵਰਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ 2 ਬੱਸਾਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇਲ ਆਪ ਪਾਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ नोटिस दी जा रहे हैं। सर, कल बैठक होने जा रही है केंद्र सरकार से एक बार दोबारा। इससे पहले खेती मंत्री का बयान आता है कि किसान अब अपनी जिद छोड़ दें, एक नया प्रस्ताव लेके आएँ। तो आपने कोई प्रस्ताव लाने के लिए कोई विचार किया आज? मैं तो हैरान हूँ। बिल आप लेके आए, कानून आपने बनाया, जबरदस्ती आपने की प्रस्ताव हम लेके आए। आपको बताना चाहिए कि भाई क्या बदलाव करोगे आप इसके अंदर, और हमने कह दिया है कि संशोधन हमें मंजूर नहीं है। मैं तो बड़ा हैरान हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया है, आज स्टे दिया है, 1 हफ्ते बाद उठ सकता है, 1 महीने बाद उठ सकता है। स्टे का क्या मतलब है? लाखों किसान वहाँ से स्टे ऑर्डर लेने के लिए नहीं आए थे। स्टे ऑर्डर तो एक वकील दिलवा देता उनको। किसान यहाँ पे हैं इन कानूनों को, किसान विरोधी कानूनों को खारिज करवाने के। मुद्दा सिर्फ कुल मिला के एक था, क्योंकि गुरनाम सिंह जी ने कल एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी और हमारे तमाम साथियों को बहुत सख्त एतराज़ था कि पार्टियों के पास हम क्यों जा रहे हैं। हमारा आगू पार्टियों की मीटिंग बुला रहा है, जिससे कहीं ऐसा गलत संदेश जाता है जैसे हम पार्टियों को बुला रहे हैं। गुरनाम सिंह जी से बात हुई, कल एक कमेटी बनाई गई, कहा 3 दिन के अंदर सुलझाओ, और मुझे खुशी है कि ये सारा 24 घंटे के अंदर खत्म हो गया। गुरनाम सिंह जी ने लिख के स्पष्टीकरण दिया। उन्होंने कहा कि कल की मीटिंग उन्होंने अपने निजी तौर पे बुलाई थी, इसका संयुक्त किसान मोर्चा से कोई मतलब नहीं था। वो संयुक्त किसान मोर्चा के साथ थे, हैं और बने रहेंगे। और इस पूरे अनुभव के बाद उन्होंने फैसला किया है कि अब आगे से वो किसी पॉलिटिकल मीटिंग में नहीं जाएंगे। इस आंदोलन का उद्देश्य किसी सरकार को बनाना या गिराना नहीं है।
इस आंदोलन का सिर्फ और सिर्फ एक उद्देश्य है कि किसानों की जो 3 कानून हैं उनको खारिज करवाना और उनको कानूनी रूप से MSP मिले, इसको हक को हासिल करना। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਬਰ ਆਈ ਕਿ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਜਨ ਸੰਸਦ ਸੱਦਣਗੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨ ਲਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਮਾਇਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਜੋ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਕੱਕਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਛਪੀ ਸੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਕੱਕਾ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖਬਰ ਝੂਠੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। मध्य प्रदेश के किसान आगू शिव कुमार कक्का जी इस वे साढ़े नाल मौजूद ने, उन्होंने गलबात करांगे। सर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि गुरनाम सिंह चड़ूनी जो हरियाणा के आगू हैं, पहले आपने उन पर गंभीर इल्ज़ाम लगाए, फिर उन्होंने आप पे गंभीर इल्ज़ाम लगाए। जो आपने उन पर गंभीर इल्ज़ाम लगाया कि 10 करोड़ का लेन देन हुआ है, कांग्रेस से उन्होंने टाइप किया, दूसरे पार्टी से टाइप किया, ये खबरें छपी हैं जो अखबारों में, क्या रियलिटी है इसकी? अखबार में समाचार झूठा है, भ्रामक है, इस पर हम कार्रवाई कर रहे हैं। पत्रकार भास्कर के हैं, उनका नाम पता लगा लिया है और इस प्रकार के भ्रामक समाचार छापने के पीछे क्या षड्यंत्र है उसकी भी हम जांच कर रहे हैं। पत्रकार से क्या बात हुई आपके? उसने क्या कहा कि रियलिटी क्या है? उन्होंने कहा कि कैसे छप गया मुझे पता नहीं है, देखूंगा कहाँ छपा है, ऐसा नहीं छपा होगा, इस प्रकार की। वो मैंने कहा हमने पढ़ा है और तुम कह रहे हो मैं देखूंगा, ये कोई संभव है क्या बगैर तुम्हारे छप जाए? क्योंकि हमने फिर उनके और साथियों से बातचीत की तो उनको उनके साथियों ने रोका था कि ये तुम गलत कर रहे हो, तुमको सूत्रों से जानकारी मिली है, तुम नाम कोट कर रहे हो, ये ठीक नहीं है। गुरनाम सिंह चड़ूनी ने कहा कि आप RSS के एजेंट हैं, तो इस आंदोलन को आप तारपीटो करना चाहते हैं, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? गुरनाम सिंह चड़ूनी हमारे साथ कई सालों से काम कर रहे हैं। तब हम क्या थे, राष्ट्रीय किसान महासंघ के थे, वो हमारे साथ ही थे। उसके बाद 54-55 दिन से हम यहाँ बैठे हुए हैं। क्या तब तक हम कोई एजेंट नहीं थे? जैसे ही उनका निष्कासन की कार्यवाही स्टार्ट हुई तो हम संघ के हो गए। तो ये क्रिया होती है, तो क्रिया की प्रतिक्रिया दिखी उन्होंने, मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं है। आप अपनी जो स्टेटमेंट दे रहे हैं, कल को आपकी ऑडियो अगर रिलीज होती है तो इसी स्टेटमेंट पे कायम रहेंगे आप? कौन सा? आप कह रहे हैं कि जो पत्रकार ने झूठ बोला है, खबर दी है, बिल्कुल कायम तो रहेंगे। वो कह रहा है कि उसके पास रिकॉर्डिंग है। हाँ, बिल्कुल कायम रहेंगे। हमारे लोग संपर्क कर रहे हैं। उन्होंने आज कहा कि आप आइए, तो बोलेगा मैं सोनीपत में हूँ। गुरनाम सिंह चड़ूनी ने विरोधी पार्टियों का इस आंदोलन में समर्थन मांगा था, उस पर आपने इतराज़ जताया है किसान जथेबंदियों ने। आपको क्या लगता है कि इसमें जन संसद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि विरोधी पार्टियों के बिना ये आंदोलन आगे बढ़ सकता है? जन संसद एक अलग विषय है, पॉलिटिकल पार्टियों की बैठक में जाना एक अलग विषय है। दो इशू हैं, दोनों को एक साथ अपन लेंगे तो बात नहीं बनेगी। तो वो कल पॉलिटिकल पार्टियों की बैठक में थे। संयुक्त किसान मोर्चा की ये गाइडलाइन है कि हमको किसी पॉलिटिकल पार्टियों की बैठक में नहीं जाना है, और अगर हम जाते हैं तो कहीं ना कहीं हम संयुक्त मोर्चा की जो नियमावली है उसका उल्लंघन करेंगे। इस वजह से ये विषय में दबाव आया। संगठन के तमाम साथियों ने कहा कि ये ठीक नहीं है, इस पर कार्रवाई होना चाहिए, तो हमने ही उनको बचाया है। वो तो कल बैठक में कह रहे थे कि अभी आप टर्मिनेट करिए, हम कहा कि नहीं, कमेटी बनाएंगे। उसके बाद आंदोलन जिस चरम सीमा पे पहुंच गया है, यहाँ किसी साथी का बिखरना ठीक नहीं है। गुरनाम सिंह चड़ूनी से आपकी बात हुई इस विषय पे? देखिए, हमारी उनसे कल और आज के बीच में कोई बात नहीं हुई है। क्यों नहीं किया आपने बात? इतना बड़ा विवाद हो गया, आपने ज़रूरी नहीं समझा कि गुरनाम सिंह चड़ूनी से बात की जाए फ़ोन पर, या उनसे पर्सनल मिल के बात की जाए, मसला सुलझाया जाए? बात वो भी कर सकते थे। जब उन्होंने बात नहीं की, कमेटी में बात चल रही है, कमेटी निर्णय कर रही है, इस बीच में बात करने का कोई औचित्य नहीं है, मैं मानता। अभी भी आपके दिल में कुछ तकरार है उनके लिए लेकर, जैसे आप कह रहे हैं कि वो पहले बात करें? मेरे मन में कोई तकरार नहीं है। मेरे लिए सभी मेंबर आदरणीय हैं और सम्मानीय हैं। अब गुरनाम सिंह चड़ूनी आपके साथ हैं या अभी भी मुअत्तल हैं? जी, गुरनाम सिंह चड़ूनी को आपने पहले संयुक्त किसान मोर्चे ने कहा कि उनको मुअत्तल कर दिया गया। अब साथ है, हमारे कमेटियों में भी है और साथ में भी है। किसान आगू जगमोहन सिंह जी इस ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰ, ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਫਿਰ ਬੈਠਕ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ,
ਤੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਬੈਠਕਾਂ ਬੇਸਿੱਟ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੱਲ ਕੀ ਉਮੀਦ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ? ਕੱਲ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਿੱਟੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਊਗੀ ਗੱਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਇੰਨੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ, 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੌਰਮੈਂਟ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੁਛ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟ ਰਹੀ, ਹੱਠੀ ਆ ਰਵੱਈਆ, ਹੱਠੀ ਰਵੱਈਆ ਲੱਗਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਛੱਡੂਗੀ ਕੁਛ। ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੇੜਕਾ ਇੱਥੇ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਰੇੜਕਾ ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਕਰੂੰਗਾ ਨਹੀਂ, ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੂੰਗਾ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਲੈਣਾ ਗਲਤ ਸੀ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਸੀ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰਾਏ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀਆਂ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਹਰੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜ਼ਮਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਜਮਾਏ ਗਏ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹੱਕਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਦਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕਰੀ ਜਾਣ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਇਵਨ, ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਕਮਲਨਾਥ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲੀ 'ਚ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ, ਟੂਰਿਸਟ ਪਲੇਸ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਸੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਮਲਨਾਥ ਦੇ ਸਾਇੰਸ ਸਨ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਬੜਾ ਸਲੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਾ ਪਿਆਰ ਆ ਗਿਆ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ, ਆਫਤ ਕਲੀਨ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਆਂਦੇ, ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲੈ ਆਂਦੇ। ਕੋਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਮਝੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਿੱਲ ਹੀ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਗਿਲਟੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਚਾਹੇ ਆਪਦੀਆਂ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਧਰਤੀ ਹਿੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਮਤੇ ਪਾਏ ਪੂਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊ, ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਦੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਆਪਦਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਆਪਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਫਾਰਮ ਕਰਨ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਆਓ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬੜੀ ਹੀ ਅਹਿਮ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਵੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਰੇੜਕਾ ਜਿਹਾ ਕਾਇਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿੱਥੇ ਮਿਸ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਰਹਿ ਗਈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇੰਨੇ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ 400 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਪਦਾ ਸਾਰਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੋਏ ਪੜਚੋਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। NIA ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਕੱਢੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ NIA ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਕੁਝ ਹੀ ਹਰਕਤ ਆ। NIA ਬਾਰੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ, 5-4 ਸਾਲ ਹੋਏ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਨੂੰ, ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਇਸ ਏਜੰਸੀ ਬਣੀ ਨੂੰ। ਇਹਦਾ ਵੱਡਾ ਦੌਦ ਵਰਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ 2 ਬੱਸਾਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇਲ ਆਪ ਪਾਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੀ ਹਰਕਤਾਂ ਨੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿੰਦਿਆ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਨੇ ਦਵਾਇਆ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਆਇਆ। ਪਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਮੀਟਿੰਗ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਦਾ ਇਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਮਸਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ? ਹਾਂ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਤੇ MSP ਦੇ ਕਰ। ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਟੀਟਿਊਡ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇੰਨੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ, ਲੱਖਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਲਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਦਾ KP ਮਾਰਗ ਉੱਤੇ, ਉਸ ਦਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਸੀ, ਉਹ 'ਚ ਹਜ਼ਾਰ ਸਨ। ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪਰੇਡ ਗਰਾਊਂਡ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਦੇ, ਇਹ 'ਚ ਲੱਖਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਹੋਣਗੇ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, 26 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦੇਣ, ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣ। ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ 26 ਜਨਵਰੀ ਆਪਦੇ ਘਰਾਂ ਜਾ ਕੇ ਮਨਾਈਏ। ਮੇਰਾ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ, 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰੇਡ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ? ਵਾਕਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਲਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲਈ ਹੈ? ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੈਸੇ ਵੀ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਆਏ ਹਾਂ, ਉਹ ਰੂਟੀਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਐਕਟਿਵ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਜੀ ਆ ਗਏ ਫਟਾਫਟ। ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਪਾਈ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਹਦੇ ਸੇ ਆ ਕੇ ਜੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਓ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਮਲਾ ਲਾ ਅੰਡਰ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਹੱਲ ਕਰੋ। ਤੇ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਤੇਜ਼ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨਗੇ। ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਮਸਲਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰੇਡ ਉਹ ਹਰ ਹੱਲ ਹੋਏਗੀ? ਫਿਰ ਜੇ ਮਸਲਾ 24 ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ, 26 ਦੀ ਪਰੇਡ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਊਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ योगेंद्र यादव जी इस वेले साढ़े नाल मौजूद ने, उन्होंने नाल गलबात करांगे। सर, कल बैठक होने जा रही है केंद्र सरकार से एक बार दोबारा। इससे पहले खेती मंत्री का बयान आता है कि किसान अब अपनी जिद छोड़ दें, एक नया प्रस्ताव लेके आएँ। तो आपने कोई प्रस्ताव लाने के लिए कोई विचार किया आज? मैं तो हैरान हूँ। बिल आप लेके आए, कानून आपने बनाया, जबरदस्ती आपने की, प्रस्ताव हम लेके आए।
आपको बताना चाहिए कि भाई क्या बदलाव करोगे आप इसके अंदर, और हमने कह दिया है कि संशोधन हमें मंजूर नहीं है। हमने कहा है कि आप इन कानूनों को खारिज कैसे करोगे, इसका प्रस्ताव लेके आओ। खारिज करने के 4 तरीके हो सकते हैं, आप कौन सा तरीका लोगे बताओ। आप एमएसपी का हक किसान को कानूनी रूप से कैसे दोगे, उसके 50 तरीके हो सकते हैं। आप प्रस्ताव लेके आओ कि सरकार हमसे क्या पूछ रही है। खैर जो भी है, हमारा वार्ता में यकीन है, हम जरूर जाएंगे। कई बार लगता है कि वार्ता नहीं, वार्ता की नौटंकी हो रही है, लेकिन फिर भी हम उस धागे को तोड़ने, हमारी किसानों की तरफ से वार्ता का धागा नहीं टूटेगा। सरकार कब गंभीर होती है, देखो उम्मीद करते हैं कि हो जाएगी। कृषि मंत्री कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है, इसके बाद किसानों को जिद छोड़नी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट शब्द उन्होंने बीच में ऐड किया है। कैसे देखते हैं आप इस फैसले को? मैं तो बड़ा हैरान हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया है, आज स्टे दिया है, 1 हफ्ते बाद उठ सकता है, 1 महीने बाद उठ सकता है। स्टे का क्या मतलब है? लाखों किसान वहाँ से स्टे ऑर्डर लेने के लिए नहीं आए थे। स्टे ऑर्डर तो एक वकील दिलवा देता उनको। किसान यहाँ पे हैं इन कानूनों को, किसान विरोधी कानूनों को खारिज करवाने के लिए हैं, और वार्ता उस बात पे हो रही है। जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है वो बिल्कुल अलग मामला है। मैं समझता हूँ पिछली वार्ता से कम एक बात स्थापित हो गई थी कि सरकार के साथ वार्ता चलती रहेगी। उसका सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ हो रहा है उससे कोई ताल्लुक नहीं है। इसलिए उम्मीद है कि हमारे तोमर जी भी उस असली सवाल पे फोकस करेंगे। जी, गुरनाम सिंह चुड़ूनी जी का मामला आज मीडिया में छाया रहा। आपने कहा है कि मसला अब हल कर लिया गया है, तो उन्होंने मध्य प्रदेश के जो किसान आगू हैं कक्का जी, उन पर गंभीर इल्ज़ाम लगाए थे, उन्होंने उन पर लगाए थे। असल में ये प्रॉब्लम कहाँ से क्रिएट हुई? आपकी बैठक में क्या नतीजा निकला, क्या रिजल्ट आया इसका? मुद्दा सिर्फ कुल मिला के एक था, क्योंकि गुरनाम सिंह जी ने कल एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी, और हमारे तमाम साथियों को बहुत सख्त एतराज़ था कि पार्टियों के पास हम क्यों जा रहे हैं। हमारा आगू पार्टियों की मीटिंग बुला रहा है, जिससे कहीं ऐसा गलत संदेश जाता है जैसे हम पार्टियों को बुला रहे हैं। गुरनाम सिंह जी से बात हुई, कल एक कमेटी बनाई गई, कहा 3 दिन के अंदर सुलझाओ, और मुझे खुशी है कि ये सारा 24 घंटे के अंदर ख़त्म हो गया। गुरनाम सिंह जी ने लिख के स्पष्टीकरण दिया। उन्होंने कहा कि कल की मीटिंग उन्होंने अपने निजी तौर पे बुलाई थी, इसका संयुक्त किसान मोर्चा से कोई मतलब नहीं था। वो संयुक्त किसान मोर्चा के साथ थे, हैं और बने रहेंगे, और इस पूरे अनुभव के बाद उन्होंने फैसला किया है कि अब आगे से वो किसी पॉलिटिकल मीटिंग में नहीं जाएंगे। उनके स्पष्टीकरण के बाद कमेटी ने कहा कि अब इस बात को और खींचने का कोई मतलब नहीं है, और गुरनाम सिंह जी कल से हमारी मीटिंग के अंदर बदस्तूर आएंगे, जारी रहेंगे, और किसानों की एकता इससे ज़्यादा मजबूत हुई है, कमज़ोर नहीं हुई है। और इस दौरान कक्का जी पर उन्होंने गंभीर इल्ज़ाम लगाए थे, और कक्का जी ने उन पर गंभीर इल्ज़ाम लगाए थे। इल्ज़ाम क्यों लगे, ऐसे क्यों सामना हुआ, ये मिसअंडरस्टैंडिंग कैसे बन गई? कक्का जी ने एक वीडियो जारी करके स्पष्ट किया है कि उन्होंने ऐसा कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया, वो इसमें ऐसी किसी चीज़ में बिल्कुल विश्वास नहीं करते हैं, और मुझे उम्मीद है कि ये बात स्पष्ट हो जाएगी तो गुरनाम सिंह जी की तरफ से भी ऐसा ही स्पष्टीकरण आ जाएगा। जो जन संसद है, मैं उसके बारे में आपसे जानना चाहता हूँ। आपको गुरनाम सिंह चुड़ूनी जी ने क्या बताया कि अब वो संसद में शामिल होंगे या नहीं होंगे? उस जनसंसद से उनका कोई मतलब नहीं है। 2 अलग चीज़ें हैं जो कंफ्यूज हो रही हैं। 23 और 24 तारीख को देश के कुछ बड़े बुद्धिजीवी, जज प्रशांत भूषण, जस्टिस गौड़ा, जस्टिस कोलसे पाटिल, मेधा पाटकर, एडमिरल रामदास, अरुणा रॉय, इन लोगों ने मिलके एक जन संसद का आयोजन किया है, जिसमें उन्होंने तमाम एमपीज़, एक्स एमपी और लेखक, इंटेलेक्चुअल, किसान नेता सबको बुलाया है। उसके अंदर सब आमंत्रित हैं, सब जाएंगे। संयुक्त किसान मोर्चा ने उसका आयोजन नहीं किया है, और वो गुरनाम सिंह जी उसके आयोजक नहीं हैं, इसलिए उसमें जाने में कोई पाबंदी है ही नहीं। जोगिंदर यादव जी, एक सवाल ये है कि जो पॉलिटिकल लीडर हैं वो भी लोगों की तरफ से चुने हुए हैं, लोगों के चुने हुए नुमाइंदे हैं, लेकिन इस किसान आंदोलन से आपने उन लोगों के चुने हुए नुमाइंदों को दूर रखा हुआ है। क्या बड़ा कारण मानते हो? आपको नहीं लगता कि उनको भी बीच में शामिल करना चाहिए, क्योंकि लोगों ने उनको चुन के भेजा हुआ है? चुने हुए नेताओं की नकेल कसना हमारा काम है, तो उनसे हमने तो हरियाणा में बिल्कुल आंदोलन चलाया था कि दुष्यंत चौटाला या तो किसान को चुने या कुर्सी को चुने। हमने आंदोलन चलाया, तो नेताओं पे नकेल रखना आंदोलन का काम है, लेकिन आंदोलन जाके उनको कहे कि आप आइए, अब तक हम ये इस मुकाम पे लेके आए, इसके आगे तो आप ही ले जा सकते हो, ये हमारा काम नहीं है। ये आंदोलन किसानों के दम पे चला है, किसानों के दम पे ही जीतेगा। इस आंदोलन को बाहर से किसी पॉलिटिकल पार्टी की मदद की ज़रूरत नहीं है।
लेकिन जिस तरीके से आप किसान आगू ये बार बार कहते हैं कि अगर सरकार मांगे नहीं मानती तो ये सरकार गिर सकती है, सरकार गिर जाएगी, इसका सीधे तौर पर फैसला तो जो विरोधी पार्टी है उनको होगा, क्योंकि अभी तक किसानों ने तो कोई सियासी पार्टी बनाने का ऐलान नहीं किया। आपको नहीं लगता है कि अगर पार्टी गिरने की बात की जाती है तो दूसरी पार्टी उनका डायरेक्ट फायदा जाता है उसका? इस आंदोलन का उद्देश्य किसी सरकार को बनाना या गिराना नहीं है। इस आंदोलन का सिर्फ और सिर्फ एक उद्देश्य है कि किसानों की जो 3 कानून हैं उनको खारिज करवाना और उनको कानूनी रूप से एमएसपी मिले, इसको हक को हासिल करना। जो इसका हासिल करने के रास्ते में अड़चन बनेगा उसका भी हम विरोध करेंगे। उससे सरकार बनती है तो बने, गिरती है तो गिरे, और जिसको अपनी सरकार बचानी है वो आंदोलन का सपोर्ट कर देना, जय जयकार हो जाएगी। हमें सरकारें बनवाना गिरवाना इस आंदोलन का कोई उद्देश्य नहीं है। आखिरी सवाल, 26 जनवरी की जो परेड होनी है उसके बारे में आज क्या फैसला हुआ, क्योंकि पुलिस के अधिकारी भी आपसे मिलने आए थे, क्या बातचीत हुई उनमें? 26 जनवरी का प्रोग्राम हम कल अनाउंस कर चुके हैं। 26 जनवरी को किसान गणतंत्र परेड है, होगी, दिल्ली के अंदर जाके होगी। कहाँ होगी? आउटर रिंग रोड हमने अपना प्रेफर्ड रास्ता बताया है, बाकी बात हो जाएगी। इसमें पुलिस वाले आज आए थे अधिकारी, वो तो यहाँ के जॉइंट सीपी थे, तो उनका जाहिर अधिकार नहीं था कि वो 26 जनवरी के प्रोग्राम के बारे में कोई डिसीजन ले सकें। फिर भी उनको हमने बता दिया कि हमारी क्या प्रेफरेंस है, हमने क्या सोचा है। बाकी आने वाले 2-4 दिन में बात हो जाएगी। मैं तो बिल्कुल मान के चलता हूँ 26 जनवरी वाले दिन, गणतंत्र के दिन, गण जनता किसान अपनी राष्ट्रीय राजधानी में जाके तिरंगा उठा के अगर गणतंत्र की परेड नहीं कर सकता तो क्या होगा इस देश के अंदर? तो मुझे नहीं लगता इसमें विघ्न आएगा, होगा और बड़े शांति से। अगर बैरिकेडिंग तोड़ने की जरूरत पड़ी तो तोड़ेंगे? किंतु परंतु की बात ही क्या है? मैंने तो आराम से कहा है कि करेंगे, दिल्ली के अंदर जाके करेंगे, और आप देखना शांतिपूर्वक होगा। अगर मगर बैरिकेड, लाठी, गोली, बिल्कुल ऐसा कोई मतलब ही नहीं है। किसान ने जाना है, एक तरफ जवान एक तरफ किसान। जवान कौन है? वर्दी वाला किसान ही तो है, उसमें और हमारे में क्या दिक्कत? शुक्रिया बात करने के लिए। सो जोगिंदर यादव जी का कहना है कि जो गुरनाम सिंह चड़ूनी का मसला है वो हुण सुलझा लिया गया ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪਰੇਡ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਿੰਘੂ ਬਾਟੋ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸ਼ਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਨ ਮੋਹਨ ਮੁਹਜਾਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਹਮਦਰਦ ਟੀਵੀ।